Hello my dear children, very good morning. Yes, today we have to study. You're most welcome in class 12th accountancy to study the computation of subscription. You have studied about the income expenditure account. This one is the preparation of preparing the income expenditure account. So therefore, just I would like to tell you how because of that it was explained current year incomes are credited in the income expenditure account in income column. So current year only. In receipt and payment account may be related to the previous year or next year or current year, whatever the amount received, just put on the debit side. But in income and expenditure account, the income from subscription or other sources of income are recorded in income column. So one of the mode, that is the main source of the income of NPOs, I mean to say not for profit seeking organization, that is the subscriptions contributed by the members of the organization. So my dear children, how the income from subscription is computed, I would like to tell. Suppose that with the question I will tell you, and just the things by preparing the subscription account you can compute are a very simple way. Because of that you have to calculate the income from subscription for the current year. How it will be calculated, my dear children? Now keep your eyes at the board and my board also. Subscription received during the year. I would like to explain Hindi also. Subscription, suppose that we have to calculate the subscription from 2019 for the 2019. Just whatever the things given, subscription received during the year. Subscription received during the year. During the year. Subscription received during the year. Just a moment should be put. Now add subscription outstanding at the end of the year. Subscription outstanding at the end of the year. End of the year. A subscription outstanding at the end of the year for the particular year, that is subscription outstanding. I mean to say that this one is the subscription for the current year but not received, my dear. So plus
फर्स्ट वन इन एडवांस, सेकेंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन received in advance advance at the beginning of year, at the beginning of the year. This one also be added. Why? What's the reason behind it? My dear children, because of that we have to compute the subscription for the current year. Remember, that will be shown on the income expenditure account in income column. Because of that, this one is the advance at the beginning, whatever given, that is the subscription is for the previous year. So in previous year subscription given for the this year, that is for the current year. That's why it is added. Less outstanding subscription, outstanding at the beginning, subscription outstanding at beginning, outstanding at beginning. This will be lessened. Why? Just you can think, because of that the outstanding at the beginning related to the previous year outstanding, and second one subscription received in advance for the next year. Subscription in advance at the end of year, at the end. This will be also lessened. Then after, just income and expenditure account, this amount will be shown in income and expenditure, income and expenditure account, whatever the amount that is for the current year. My dear children, in Hindi I would like to explain this one. Just you can see how the subscription computed. So now listen it carefully. Whatever the subscription received during the year, जो भी सब्सक्रिप्शन हम साल के दौरान रिसीव कर लेते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो और चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, कितना अमाउंट इन रिसीव्ड एंड पेमेंट कॉलम में हमने साल के दौरान रिसीव किया, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि दिया गया है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन बाकी रह गया है, उसे हम जोड़ेंगे उस सब्सक्रिप्शन में। जोड़ेंगे तभी ना मालूम होगा। देखो बेटा, हमको केवल इस साल का, जिस साल हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस साल का हमें सब्सक्रिप्शन कंप्यूट करना है। तो उस साल का सब्सक्रिप्शन कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे,
सब्सक्रिप्शन जो इस साल का बाकी रहेगा उस सब्सक्रिप्शन में जोड़ देंगे, और पिछले साल जो एडवांस हम पाए थे तो पिछले साल का एडवांस इस साल का सब्सक्रिप्शन है उसे भी जोड़ देंगे हम। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसे जोड़ देंगे, उसको टोटल कर देंगे, और उसमें से घटाएंगे क्या, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है। बिगिनिंग में मान लो पिछले साल का बकाया इस साल पाए तो इस साल का तो है नहीं वो, तो उसे हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो एडवांस इस साल पाए करंट ईयर में, तो एडवांस पाने का मतलब है वो अगले साल का सब्सक्रिप्शन। तब हमको शुद्ध सब्सक्रिप्शन जो इनकम है हमारा वो हमें प्राप्त होगा। किस लिए? इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसी को हम कंप्यूट उसे शो करेंगे इनकम कॉलम में। इसका कंप्यूटेशन करने के बाद अब आप देखें आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, हम उसी को पढ़ेंगे, जरा सा ध्यान से देखेंगे। बुक मेरे हाथ में है। क्वेश्चन है क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2016-17. Just we have to compute the subscription for 2016 and 17. Means 2017, not the first March 2017. बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है हमारा वो कितना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, कर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। इस साल जो सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन है इसका। सब्सक्रिप्शन इस साल को हमने रिसीव किया वो है 50,000, ठीक है, राइट ओवर हियर 50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। दिस वन इज गिवन 50,000 रुपए दिया हुआ है। कर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। इन 2016 का मतलब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारा कितना है? 20,000 का। तो पिछले साल का तो आउटस्टैंडिंग जो हमें इस साल मिल गया है तो उसे तो हमको माइनस कर देना है, तभी ना इस साल का एक्चुअल इनकम हमें पता लगेगा सब्सक्रिप्शन का। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 का सब्सक्रिप्शन बकाया है। तो ये क्या किया जाएगा, जो हमने पूरे साल के दौरान इस साल का इनकम कैलकुलेट करने के लिए उससे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पिछले साल का है तो पिछले साल वाला माइनस कर देंगे। हम माइनस वाले कॉलम में लिख दिया हमने, कितना है? 20,000 मतलब लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। इस साल का बिगनिंग हो गया वो। दूसरा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 का मतलब जिस साल का हम कंप्यूट कर रहे हैं अभी बाकी है, मिला नहीं है, वो अगले साल मिलेगा। तो इनकम में तो हमारे इसी साल का है तो हम उसे ऐड कर देंगे 6,000 प्लस 6,000। अब हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया 56,000 का और उसमें से 20,000 हम माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च
2016 का 2016 का एडवांस 2016 में अगर जो एडवांस आप सब्सक्रिप्शन पाए हैं तो वो सब्सक्रिप्शन किस साल का? 2017 का। इसे भी प्लस कर देंगे 8000। अब इसको टोटल कर दिया हमने 0 0 0 8 से 14 को 4 64,000 ये टोटल आया। अब एक चीज और कहा जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2017 मतलब 31/3/2017 को जो एडवांस हम पाएंगे वो सब्सक्रिप्शन किस साल का? नेक्स्ट ईयर का। तो इसे माइनस कर देंगे 9,000 ये टोटल हो गया 66,000 और 9,000 आप ये टोटल हो गया आपका 29,000। अब इस साल का इनकम आप क्या करेंगे? 64,000 माइनस 29,000 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। आप यहां पर आ जाएगा अमाउंट आपका ये माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस, तो आप देखेंगे 64,000 से आपने 29,000 माइनस किया। 64,000 माइनस 29,000 0 0 0 5 3 means income and expenditure account the amount will be credited 35,000 मतलब इस साल का हमारा इनकम जो होगा वो कितने का होगा? 35,000। क्लियर? समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ये कहा जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000 इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। Subscription received in advance at the beginning of the year, because of that this one is related to the current year, in which year you are calculating the amount of subscription credited in the income and expenditure account. So other information given, subscription outstanding at the beginning because of this subscription related to the previous year, that's why it will be deducted from the subscription received during the year. And subscription received in advance at the end of the year, because this subscription is related to the next year, it will be also deducted from the subscription received during the year. And the subscription outstanding at the end of the year, because of this subscription related to the current year, that's why it will be added in the subscription received during the year. Subscription received in advance at the beginning of the year means this subscription related to the current year, that's why it will be also added. This way you can compute the subscription, actual subscription, income from subscription of the current year. Now the next question that is given in from the following question number 11, from the following information related to health club, calculate the amount of subscription received during the year ended 31st March 2000। कितना रिसीव किया गया, ये नहीं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो क्या कहा जा रहा है? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 1,20,000। जरा ध्यान देना, 1,20,000 है बेटा इस साल। अब ये कहा जा रहा है कि आगे इसमें क्या क्या इंक्लूड है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। तो इसे क्या करेंगे, कितना आपने रिसीव किया रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट पे, इसे माइनस कर देते हैं। रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, तो इसे प्लस कर देंगे, प्लस 10,000, क्योंकि इसमें ऐड नहीं है। जो एडवांस इस साल का हम कितना रिसीव किए हैं, ना कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का निकाल रहे हैं हम, तो इसे हम ऐड कर दिए। फिर कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इसे भी जोड़ देंगे आप। कितना है 20, सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ 1 अप्रैल 2017 27,000 आपने जोड़ दिया। जोड़ा कितना है 0 0 0 7 2 2 4 1 5 1,57,000। आगे इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 22,000। तो ये 31 मार्च का, इसका मतलब इस अमाउंट में जुड़ा होगा, तो इसे माइनस कर देंगे 22,000 माइनस, और उसके बाद बेटा 8,000 है 1 अप्रैल 2017 का एडवांस वाला है, तो इसे भी माइनस कर देंगे, माइनस 8,000 इक्वल टू 1,27,000। ये आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आपने इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। देखिए ठीक पहले क्वेश्चन में आप इनकम निकाल रहे थे, पहले क्वेश्चन में आप इनकम निकाल रहे थे कि कितना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि कितना अमाउंट हमने रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में रिसीव किया। तो इसका ठीक अपोजिट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसका जो ऐड है इस पे वो माइनस कर देंगे, और जो माइनस है वो ऐड कर देंगे। ये ट्रिक है बहुत सुंदर, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन हुआ। आगे भी जो चीज़ें आएंगी हम आपको बताएंगे। अब आप ध्यान दें, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है वो चीज़ इस तरह से है, और आपको होमवर्क दिया जाएगा और बढ़िया से